Hey guys, welcome to the channel. I hope all of you are doing very well. And पिछले वाला लेक्चर आपने देख लिया है, उसमें अगर कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हो. आई एम हियर टू सॉल्व ऑल योर डाउट्स एंड we are moving ahead today. For all those who've joined new, we are doing CBSE chemistry for class 10 और हम लोग इसकी पूरी एक प्लेलिस्ट बना रहे हैं. वी स्टार्टेड विद द फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, जिसमें हम लोग कुछ चीज़ें कर चुके हैं और काफ़ी कुछ करने को बचा है. सो बी रेगुलर, I'll be regular, you'll be regular, and we are going to crack it together. So let's go ahead guys. नाउ आपने पिछली वाली लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने बैलेंसिंग कैसे करते हैं उसको हमने करा था. आयनिक इक्वेशंस की बैलेंसिंग भी, मॉलिक्यूलर इक्वेशंस की बैलेंसिंग भी, both we had finished. Now today we are going to do the next topic. So let's see what all do we have stored today in our lecture. We are going to do exothermic and endothermic reactions. We are going to do combination reactions and we are going to do decomposition reactions. मुझे पता है कि types of reactions आपके पास 5 तरह के हैं, वैसे आपके पास 4 तरह के हैं: combination, decomposition, displacement and double displacement. But I am going to do this today in this lecture and next lecture में, क्योंकि हम लोगों ने activity series भी करनी है तो उसे क्लब किए करेंगे हम डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट के साथ. ठीक है. सो आई होप इट इज क्लियर. 3 types of reactions we are going to do today: exothermic and endothermic, combination reactions and decomposition reactions. A very simple lecture we have today. हाँ, आगे आगे जाते रहेंगे from very low level to a very high level. So this is a full आपका CBSE boards के लिए playlist बन रहा है ये. So let's go on to the exothermic and endothermic reaction. Now as the word suggests, exo का मतलब होता है to give out और thermic का मतलब होता है heat, right? और endo का मतलब होता है to take in और thermic का मतलब होता है again heat. So हम लोग reactions को classify करते हैं into endothermic and exothermic depending upon whether during a reaction heat is absorbed or heat is evolved. So when we're talking of exothermic reactions वो होती हैं जिसमें evolution of heat takes place. As I told you, exo means to give out. So इसमें evolution of heat, whenever a reaction will take place, तो जिस कंटेनर में रिएक्शन हो रहा है वो कंटेनर वार्म अप हो जाता है. मतलब इसका ये हुआ कि रिएक्शन होते हुए हीट जो है वो प्रोड्यूस हुई है जिसने उस बीकर को गर्म कर दिया है. ठीक है. और एंडोथर्मिक एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, बिल्कुल सही. ये वाला जो रिएक्शन जिसमें हम कर रहे हैं कंटेनर वो ठंडा हो जाएगा, right? So because the temperature over here is, it is absorbing heat, so therefore there is a possibility that the container that becomes colder. Evolution of heat में हमारे पास बहुत सारे examples हैं, unlimited examples हैं, especially combustion reactions हैं. जब भी हम किसी भी फ्यूल को बर्न करेंगे तो वो हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट दे देगा. सो अगर आप कोल को बर्न कर रहे हो, लाइट और हीट वो देता है, 2 forms of energy. अगर आप कोल को बर्न कर रहे हो इन ऑक्सीजन, दैट इज गोइंग टू गिव अस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस इट इज गोइंग टू गिव अस हीट, राइट? देन वी कैन टेक अनदर एग्जांपल ओवर हियर. इफ यू आर बर्निंग अनदर फ्यूल, लेट्स से हम मीथेन बर्न कर रहे हैं. मीथेन को हम बायोगैस भी बुलाते हैं और बहुत सारी जगह पे अब मीथेन को यूज करने लग गए हैं एज अ फ्यूल, राइट? So this is going to give us carbon dioxide plus water plus heat. So all of these are examples of exothermic reactions. You want to take another one? We can take another one, guys. So we have H2 gaseous plus Cl2 gaseous. इस तरह से हम लोग रिएक्शन को ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं to give us 2HCl plus heat. So these are all examples of exothermic reactions.
Now, if we are looking at examples of endothermic reactions, so endothermic में heat is going to be taken in. Okay, so we have N2 plus O2 both in the gaseous state. This is the formation of nitric oxide, 2NO, again gaseous. हर एक उसमें इक्वेशंस को कैसे बैलेंस करते हैं हर एक लेक्चर में, उसको आपने नोटिस करना है और प्रैक्टिस उसी से आपकी होगी. सिर्फ थोड़ी सी रिएक्शंस प्रैक्टिस करके आप बैलेंसिंग नहीं सीख सकते. तो हर एक लेक्चर्स में जो भी हम रिएक्शंस कर रहे हैं आप देखो कि वो बैलेंस किस तरह से की गई हैं. ऑलराइट, सो दैट विल हेल्प यू यू नो टू राइट डाउन द रिएक्शंस. वर्ड इक्वेशंस आपको देते हैं, उससे आपने रिएक्शंस लिखनी होती है, केमिकल रिएक्शंस लिखनी होती हैं. तो दिस इज द थिंग विच इज गोइंग टू हेल्प यू इन दैट. अब यहाँ पे क्योंकि एक हम बोल रहे हैं क्या है कि दिस इज एंडोथर्मिक, तो एंडोथर्मिक का मतलब क्या हुआ कि हीट जो है दैट इज गोइंग टू बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. तो यहाँ पे हम प्लस हीट लिख सकते हैं. अगर हम राइट हैंड साइड पे लिखेंगे तो माइनस हीट लिखेंगे. ऑलराइट, यहाँ पे आपने प्लस हीट लिखा है ना. सो अगर आप राइट हैंड साइड पे ही इसको लिखना चाहते हो तो आई विल टेक द नेक्स्ट रिएक्शन एंड शो यू हाउ दैट कैन ऑल्सो बी रिटन. तो वी आर टेकिंग ओवर हियर decomposition of ammonia to give us nitrogen plus hydrogen. अब इधर आपने प्लस हीट लिखा था ना, एंडोथर्मिक में आप माइनस हीट लिख सकते हो. सो बोथ आर करेक्ट. इधर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आप प्लस हीट लिख दो या आप माइनस हीट लिख दो ऑन द राइट हैंड साइड. सेम इज विद एक्सोथर्मिक ऑल्सो. आप माइनस हीट, यहाँ पे आप प्लस हीट लिख रहे हो तो रिएक्टेंट वाली साइड पे आप माइनस हीट अगर लिखा होगा, सो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. Another example we can take calcium carbonate plus heat. This is giving us calcium oxide plus carbon dioxide, right? So both the ways is correct. Please visualize या investigate या identify कि आपको question में किस तरह से दिया हुआ है. Okay, so these are exothermic and endothermic reactions. The next type of reactions which we are going to discuss are combination reactions. Combination means what? Combination का मतलब हो गया to combine. Okay, so combination means to combine. To combine. तो इसमें डिफरेंट रिएक्टेंट्स जो हैं वो कंबाइन करके हमारे पास प्रोडक्ट बनाते हैं. कैसे आइडेंटिफाई करना है आपने कि रिएक्शन कॉम्बिनेशन है कि नहीं? तो नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स विल बी मोर और नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स विल बी वन, राइट? सो कॉम्बिनेशन अलग अलग चीज़ों की हो सकती है. कॉम्बिनेशन दो एलिमेंट्स की हो सकती है, कॉम्बिनेशन दो मॉलिक्यूल्स की हो सकती है, राइट? कॉम्बिनेशन एक एलिमेंट की और दो मॉलिक्यूल्स की भी हो सकती है. Okay, so these are two elements combining to give us one product. These are two molecules or two compounds combining to give us one product, and this is one element and one compound which is combining to give us one product. So reactions जिसमें two या more than two substances combine करते हैं to give us a single substance, very important, to give us a single substance, उसे हम क्या बुलाते हैं? That is known as combination reactions. Yes, of course we are going to do a lot of examples over here. So first category में, एक तो मेरी slides बहुत हिलने लग गई आजकल, randomness आ रही है इसमें. Okay, तो अब क्या हो रहा है इसमें कि हम लोग फर्स्ट ले रहे हैं, we are taking the combination of two elements. Combination of two elements, right? Two elements. So, okay, let's say carbon plus oxygen to give us carbon dioxide gas. हाँ जी, इसमें हीट निकलेगी तो ये आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है, बट एट द सेम टाइम ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है. तो अगर यहाँ पे हम लोग लिख दे प्लस हीट, दिस इज नॉट गोइंग टू बी रॉन्ग गाइस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्यों? क्योंकि एक एलिमेंट दूसरी एलिमेंट के साथ कंबाइन करके हमें एक प्रोडक्ट दे रहा है, ठीक है.
Similarly, we can take another example. Hydrogen plus chlorine. Again, more informative बना देते हैं gaseous to give us 2HCl. Gaseous. So this is again two elements they are combining to give us what? One product. Okay. Another example we can take. मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करते हैं, फर्स्ट लेक्चर में हमने करा हुआ ये 2Mg प्लस O2 टू गिव अस 2MgO. तो आप देख रहे हो कि सब में क्या है, एक एक ही प्रोडक्ट है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, राइट. एक एक प्रोडक्ट है ना, तो कॉम्बिनेशन हो गया. रिएक्टेंट्स दो हैं, प्रोडक्ट्स एक है, तो कॉम्बिनेशन हो गया. ओके. देन वी कैन टेक अनदर एग्जांपल. आयरन प्लस sulfur to give us FeS. So all these they are examples in which two elements are combining to give us one compound. Let's take another. Let's go on to the next one. Next हमारे पास क्या है? Combination of an element and a compound. Combination of an element and a कंपाउंड. ठीक है. अब इसमें हम एक एलिमेंट ले रहे हैं और एक कंपाउंड ले रहे हैं. जैसे हमने लिया 2NO प्लस ऑक्सीजन टू गिव अस 2NO2, पर प्रोडक्ट देखो एक ही है, isn't it? ये भी गैशियस है, ये भी गैशियस है और ये भी गैशियस है. सो ये NO जो है दैट इज गोइंग टू बी अ कंपाउंड. इट इज कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन to give us 2NO2 gaseous, so one product, combination reaction, one product. Second example which we can take over here is sulfur dioxide plus oxygen to give us sulfur trioxide. So this is gaseous, this is also gaseous, this is also gaseous, guys. अब यहाँ पे भी sulfur dioxide compound, oxygen element to give us one product which is sulfur trioxide. Combination one product, combination one product. Okay, this you have to remember. C, combination of two compounds. Combination of two compounds. अब इसमें भी आपके पास प्रोडक्ट एक ही होगा, देखना आप. NH3 प्लस HCl. सो दो कंपाउंड को हम लोग कंबाइन कर रहे हैं, पर हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ रहा है? ओनली वन. सो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस. ठीक है. अनदर एग्जांपल, CaO प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड टू गिव अस कैल्शियम सल्फेट, one product. So again this is a combination reaction. I hope I have made myself very very clear. आइडेंटिफाई करने के लिए आपको रिएक्शंस आ सकती है बच्चों, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी रिएक्शन क्या है. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू गो ऑन टू डीकम्पोजिशन रिएक्शंस. डीकम्पोजिशन का मतलब क्या हुआ? ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन, टू डीकम्पोज. सो अब यहाँ पे रिएक्टेंट एक होगा पर प्रोडक्ट्स ज्यादा होंगे, राइट. सो इसमें कंपाउंड जो है दैट इज गोइंग टू ब्रेक अप इनटू, स्लाइड नहीं टिक रही भैया. ओके. सो यहाँ पे कंपाउंड एक है हमारे पास और कंपाउंड ब्रेक हो जाएगा इनटू टू और मोर देन टू ऑल्सो समटाइम्स. सो दिस इज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन. मतलब अगर आपने कंपाउंड AB ले लिया है और वो ब्रेक डाउन हो रहा है इनटू A प्लस B, सो आप क्या देख रहे हो? अब यहाँ पे रिएक्टेंट एक है पर प्रोडक्ट्स मोर देन एक है. डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरह से हम लोग डीकम्पोजिशन रिएक्शंस को करते हैं, हाउ डू दे अकर, व्हाट आर द कंडीशंस व्हिच वी आर प्रोवाइडिंग देम, वी क्लासिफाई देम इनटू नंबर 1 थर्मल डीकम्पोजिशन. थर्मल डीकम्पोजिशन. थर्मल का मतलब क्या हो गया? थर्मल मीन्स टेम्परेचर. सो अगर टेम्परेचर या हीट देके कोई भी एक कंपाउंड डीकम्पोज हो रहा है, दैट इज डीकम्पोजिशन और इट इज नोन एज थर्मल डीकम्पोजिशन, राइट.
For example, we can take over here ferrous sulfate .7H2O. This is green in color, crystals होते हैं ये ferrous sulfate के. This is also known as green vitriol. Okay, so green color का है ये. जब हम इसको हीट करते हैं, हीट का साइन बच्चों ट्रायंगल की तरह हम लोग, आप हीट भी लिख सकते हो, पर अगर आप ट्रायंगल सिर्फ लिखते हो तो इसका मतलब भी हीट ही होता है. तो जब हम इसे हीट करेंगे तो इसका ग्रीन कलर जो है वो डिसअपेयर हो जाता है, बिकॉज जो वाटर मॉलिक्यूल्स इसके साथ है वो इसका साथ छोड़ देते हैं. So two things are happening in this reaction. Number one, green color FeSO4 is going to be dirty white. ये एक्टिविटी भी है आपकी बुक में. एक तो ये हो गया कि कलर चेंज हो गया. दूसरा, ये प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स और ये प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ पाउडर. Understood? So this is, we have heated a compound and we get a new compound. This is known as thermal decomposition. ठीक है, thermal decomposition का क्या मतलब था? Decomposition which occurs due to supply of heat. अब अगर हम लोग decomposition करते हैं by the use of electricity, then that is known as what? That is known as electrical decomposition. देखो स्लाइड भाग रही है. ओके, सो your second is decomposition by electricity, which is known as electrical decomposition. Right? इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तब भी वो डिकम्पोज हो जाएगा. और इसका सबसे बेस्ट जो एग्जाम्पल है दैट इज वाटर. वाटर को जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट देते हैं तो वो डिसोसिएट हो जाता है इनटू हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन. बोथ आर गैसेस. ओके, इसको हम लोग क्या बुलाते हैं प्रोसेस को? इलेक्ट्रोलिसिस. The process is known as electrolysis. Right? Now, इसमें when we do the experiment, तो it is seen that there are bubbles which are going to appear. So gases जो evolve हो रही है वो है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. रिमेंबर, इसमें से आपको एक क्वेश्चन आता है कि वॉल्यूम हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की क्या रेशो है. तो आप देख सक रहे हो कि यहाँ पे ट्वाइस हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है. सो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस, द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन gas is found to be double the volume of oxygen. Found to be double the volume of oxygen. So ratio जो इसकी रहेगी that is 2:1. Right? और प्रोसेस को हम लोग क्या बुला रहे हैं? इलेक्ट्रोलिसिस. ओके, तो बर्निंग कैंडल्स को जब हम लोग लाते हैं दोनों इलेक्ट्रोड्स पे, तो एक इलेक्ट्रॉन्स पे देयर इज गोइंग टू बी अ पॉप साइन साउंड और दूसरे वाले इलेक्ट्रोड पे क्या होगा? इट विल, द कैंडल विल कीप बर्निंग. देन वी हैव द थर्ड टाइप ऑफ डीकम्पोजिशन. द थर्ड टाइप ऑफ डीकम्पोजिशन को हम लोग क्या बुलाते हैं? इट इज नोन एज फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन. तो फोटो एंड केमिकल डीकम्पोजिशन बाय सनलाइट. राइट? देन वी हैव द, जस्ट गिव मी सेकेंड गाइज, मेरे लैपटॉप के अंदर मुझे लग रहा है कुछ ऐसा कि भूत ही घुस गया है. समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग इज डेफिनेटली रॉन्ग. ऑलराइट, सो वी हैव decomposition by sunlight. और इसको हम क्या बुलाते हैं?
Decomposition with sunlight is known as photochemical decomposition. This is known as photochemical decomposition. तो अगर हम लोग एक चाइना डिश लें इस तरह से, और इस चाइना डिश में हम लोग डाल देते हैं वाइट कलर के क्रिस्टल्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड. सिल्वर क्लोराइड इज AgCl. और we are passing the or we are exposing this to the sun rays. जब हम इसको एक्सपोज करते हैं सन रेज में, तो जो वाइट क्रिस्टल सिल्वर क्लोराइड के होते हैं, they convert into gray. So AgCl, which are white crystals, on exposure to sunlight, they are going to convert into gray. The gray color is due to the production of silver. Decomposition of silver chloride takes place to give us silver plus chlorine. So ये white से silvery gray में convert हो जाता है. So this tells us that there is some reaction which has taken place. The same can also take place, same kind of reaction can take place if we are taking AgBr. So this will also decompose in presence of sun rays and give us Ag plus Br2. Alright, so these are, this is, remember कि ये जो reaction है silver bromide वाली और silver chloride वाली, this is, these both these reactions, they are used in black and white photography. Okay, so black and white photography में हम लोग इसको use करते हैं. Now what are the uses of decomposition reaction? करें uses. Decomposition reactions जो हैं वो use होती हैं in the extraction of metals. ठीक है, कुछ ऐसी decomposition reactions हैं जो कि they are carried out by electricity और वो use की जाती है to extract a lot of metals. देखो मैं कोशिश करती हूँ कि ना हिले, पर ये फिर भी हिलती जाती है. I don't know what is wrong with it. Okay, phenomena समझना पड़ेगा इसका मुझे. So we are going on to the uses of decomposition reactions. Uses of decomposition reactions. तो यहाँ पे the first and foremost use of decomposition reaction is extraction of metals from their ores. We will do this again. आगे अपने जो नेक्स्ट वाले चैप्टर्स आएंगे उसमें. तो ये जो प्रोसेस होता है इसे हम बुलाते हैं मेटलर्जी. जब हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं उनके ओर्स से. ओर्स क्या होते हैं? ओर्स वो होते हैं जिससे हम लोग मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. ओके, सो लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू टेकिंग जिंक कार्बोनेट. जिंक कार्बोनेट जो है दिस इज यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक. तो जिंक कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो इट कन्वर्ट्स इनटू जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. फिर फर्दर हम लोग जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन करते हैं कार्बन के साथ. सो दैट इज हाउ जिंक इज एक्सट्रैक्टेड. बट इसकी जो फर्स्ट रिएक्शन है दैट इज डिकम्पोजिशन ऑफ जिंक कार्बोनेट. राइट, सो जिंक कार्बोनेट इज एन ओर ऑफ जिंक. ओर्स वो होते हैं जिससे हम लोग मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं. Another example which we can take over here is
मोल्टन एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो कि एल्यूमिनियम की एक ओर है, उसमें अगर हम लोग उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करें, सो दैट इज इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन। इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करने से हमारे पास एल्यूमिनियम आ जाता है and oxygen gas is evolved. So this is how we can extract aluminium. In a similar manner, if we are doing the remember कि ये जो aluminium oxide हम यहाँ पे ले रहे हैं, this is molten, मेल्ट करा हुआ। अगर मेल्ट नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होगा। उसी तरह से अगर हम लोग सोडियम क्लोराइड मोल्टन लेते हैं और इसकी हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, so this is going to give us sodium metal plus chlorine. So this is how it will help us decomposition reactions जो हैं, that is going to help us for the extraction of metals। और extraction of metals के process को हम क्या बुलाते हैं? It is known as metallurgy। और ores क्या है? मिनरल्स जिससे हम लोग मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल व्हाट वी हैव फॉर टुडे गाइस। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस एंड रिएक्टिविटी सीरीज व्हिच इज very 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 important। and after 2 classes we are going to finish this chapter and we will go on to questions from previous years which have come from this chapter, right? So you be ready फॉर दैट। पर उससे पहले ये सारा का सारा बहुत बहुत अच्छे से रिवाइज होना चाहिए। ओनली देन यू विल बी एबल टू डू द क्वेश्चंस। और जो क्वेश्चंस वाली क्लास होएगी उसकी हम लोग लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे बच्चों, तो आप जितने भी स्टूडेंट्स को उसमें ज्वाइन करवा सकते हो, प्लीज डू इट। ओके, बाय बाय, सी यू सून।